Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMB English Medium, Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject SS. We are dealing with chapter number 3, weather and climate, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, in our previous session, we learned what is weather, what is climate, what are the differences between weather and climate. So, what is weather? It is the atmospheric condition of a particular place at a particular time. Weather is for short period. It keeps changing day to day and even sometimes, many times in a day. एक ही दिन में बहुत बार भी चेंज हो सकता है वेदर. बट क्लाइमेट, इट इज एन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन होता है उसका एवरेज होता है. देन वी लर्न रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. So difference between weather and climate, first difference is the same, that weather is for short period of time, climate is for longer period of time. Then weather keeps changing day to day, but climate is average weather condition for a long period of time. Then weather affects the daily life of the people, but climate affects the lifestyle, occupation, vegetation, all these things. Lastly, the scientist who studies about the weather is called meteorologist, and the scientist who studies about the climate is called climatologist. So these all things we have already dealt with in our first session. In today's session, we are going to learn regarding the factors influencing the climate. I had already told you there are different factors due to which the climate of different places are different. Which are the factors? That is distance from the equator, altitude, distance from the sea, direction of the wind, rainfall and humidity. One by one we will learn about these factors in detail. To start with, factors influencing the climate. So the climate of a place is affected by several factors such as the altitude, latitude, distance from the sea, humidity and wind. First thing is distance from the equator. How does that affect? Let me explain it to you first. This is the earth. Here you have equator. Now if the sun is here, this is the sun you say. The sun's rays directly falls on the equator, right? And the places away from the equator, they have slanting rays. यहाँ इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आती है, तो इक्वेटर के आजू बाजू में जितनी भी प्लेसेस है वहां पर बहुत सन रेज होती है, और जितनी सन की रेज ज्यादा होगी उतनी गर्मी भी ज्यादा होगी. सन की रेज जितनी स्लैंटिंग होगी, स्लैंटिंग पोजीशन में होगी, उतना कोल्ड हो जाएगी, उसकी गर्मी नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस सन की रेज ने ट्रैवल किया है इसमें इसकी गर्मी भी निकल जाती है और डायरेक्ट नहीं है, वो यहाँ से पास होकर जाती है. See here you have all slanting rays. So धीरे धीरे गर्मी कम होते जाती है, ठंडी बढ़ने लगती है. So इक्वेटर से कितनी दूर है? फॉर एग्जाम्पल आपका कंट्री इक्वेटर के नजदीक है, this place, then here it must be extremely hot. But if your country is located somewhere here, then what will it happen? It is not so hot. उतनी गर्मी नहीं रहती है. Correct? So distance from the equator.
The climate of a place is affected by its distance from the equator. The places near the equator are much hotter because they receive more sunlight than places situated at higher latitudes. Latitudes I know you are knowing. यहाँ पर जो होती है वो latitudes होती है. तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होती जाएगी, अगर आपका कंट्री इस लैटिट्यूड में आता है तो यहाँ अलग क्लाइमेट होता है, इस लैटिट्यूड में है तो अलग क्लाइमेट आता है, यहाँ पर है तो अगेन इट चेंजेस. सो एज यू गो टू द हायर लैटिट्यूड इट बिकम्स मोर कोल्ड. जैसे जैसे इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड पर जाओगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी. The sun's rays falling on the equator are vertical and spread over a small area. ये जो सन की रेज है, इक्वेटर के ऊपर जो सन की रेज आ रही है यहाँ, see I'm highlighting this time. This ray is exactly falling on the equator, and that is why it travels less area. एरिया कितना, इतनी छोटी सी लाइन है और यहाँ की लाइन देखो, it is so long. So it travels to a short area. This ray travels to a short area which falls on the equator. ये इक्वेटर के ऊपर जो भी रेस होती है वो शॉर्ट एरिया को ट्रेवल करके इसीलिए गर्म भी ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा ने अगर टी बनाई है तो वो टी अगर आप इमीडिएटली पीते हो तो बहुत ज्यादा गर्म होती है. थोड़ी देर के बाद पियोगे तो क्या होगा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी. वन मोर थिंग, आप स्टीम लेते हो राइट? यस. जब सर्दी हो जाती है तो आप स्टीम लेते हो, तो आप एग्जैक्टली स्टीम के ऊपर अपना फेस रखोगे तो क्या होगा, फुल स्टीम, फुल गर्म आपके मुंह के ऊपर आएगी, फुल स्टीम. बट अगर आपका फेस थोड़ा दूर है तो क्या होगा, उतना गर्म नहीं लगता है. सेम वे सन की रे इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली आती है, इसीलिए यहाँ बहुत ज्यादा हॉट होता है. बट जैसे जैसे दूर होता जाएगा वो रेज स्लैंटिंग होती जाएगी, उतनी ठंडी भी होती जाएगी. So the sun rays falling on the equator are vertical and spread over a small area. ये small area travel करके आती है, ज्यादा travel नहीं करना पड़ता है. That is why it is extremely hot. Hence, the equatorial region experience hot and humid climate. However, as we move away from the equator, that is towards the pole, the sun ray becomes slanting and covers large area. जैसे जैसे हम poles की तरफ, North Pole and here you have South Pole. जैसे जैसे आप poles की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये स्लैंट की रेज है वो थोड़ी स्लैंटिंग और ज्यादा स्लैंटिंग, एकदम स्लैंटिंग. तो स्लैंटिंग होती जाएगी ये सन की रे, और जैसे स्लैंट होती जाती है वैसे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है एंड इट लूजेस इट्स हीट, और उसकी गर्मी जो है वो निकलने लगती है, कम होने लगती है. एज अ रिजल्ट, places situated near the pole experience a cold climate. Places situated near equator receive more heat than those situated near the poles. तो पोल्स के पास जितनी भी जगह होती है वहां पर ठंडी ज्यादा होती है. उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पर स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन होते हैं. एंड इक्वेटर के पास जो भी प्लेसेस सिचुएटेड है वहां गर्मी ज्यादा होती है बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्टीट्यूड. I explained to you what is altitude in the vocabulary through PPT, right? Altitude means sea level से कितनी हाइट पर है उसको हम altitude कहते हैं. हायर ऑल्टीट्यूड पर जो प्लेसेस होती है वहां ठंडी ज्यादा होती है और सी लेवल के जितने नजदीक है वहां गर्मी ज्यादा होती है. दैट इज वाई यू माइट हैव ऑब्जर्व हिल स्टेशंस है या माउंटेन्स है वहां पर ज्यादा ठंडी होती है. करेक्ट? राजस्थान इज एक्सट्रीमली हॉट बट माउंट आबू विच इज लोकेटेड इन राजस्थान it is not hot, it is having a pleasant or a cool climate just because it is hill station and it is above the sea level.
वो एक हिल स्टेशन है, मतलब हिल एरिया है। राजस्थान पूरा का पूरा गर्म है, डेजर्ट एरिया है, बट राजस्थान में ही ये माउंट आबू लोकेटेड है। और माउंट आबू बिकॉज इट इज अ हिल स्टेशन, वो सी लेवल से हाइट पर है थोड़ा, और इस वजह से यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, प्लेजेंट और कोल्ड। यहाँ पर गर्मी नहीं है। सो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑल्सो अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। Places situated at lower altitude are hotter than the places situated at higher altitude. जैसे ऑल्टीट्यूड लो होगा गर्मी ज्यादा होगी, हाई होगा तो ठंडी ज्यादा होगी। इसीलिए हिल स्टेशंस, माउंटेनियस एरिया, यहाँ पर ठंडी ज्यादा होने का रीजन यही है क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड हाई है, थोड़ा ऊपर होता है। Places located near hills or mountains are cooler. For example, hill station like Shimla, Kulu Manali, Dharmshala, Ooty and Nainital are located in the middle Himalayas. ये सारी जगह मिडल हिमालयास, हिमालयन माउंटेन के 3 रेंजेस है, तो उसमें मिडल हिमालयास में ये लोकेटेड है। They experience cool climate in summer. तो यहाँ समर सीजन में भी कूल क्लाइमेट होता है क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड हाई है, सी लेवल से हाइट पर ये सारी प्लेसेस लोकेटेड है। इसीलिए यहाँ पर समर सीजन जो नॉर्मली हॉट होती है उस टाइम में भी यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। ऑन द अदर हैंड, प्लेसेस सिचुएटेड नियर द प्लेन्स आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। बट प्लेन्स में समर सीजन में गर्मी ही लगती है, सिर्फ विंटर के टाइम में ठंडी होती है। जो हायर ऑल्टीट्यूड पे प्लेस है वहां समर में भी ठंडी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली दे आर कूलर। फॉर एग्जाम्पल, शिमला इज लोकेटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड एंड दिल्ली इज लोकेटेड एट लोअर ऑल्टीट्यूड। शिमला थोड़ा हाइट पर है, दिल्ली लो ऑल्टीट्यूड पर है, सी लेवल के पास। एज अ रिजल्ट, शिमला इज कूलर देन दिल्ली इवन ड्यूरिंग समर। और इसी वजह से समर सीजन में अगर आप देखो तो दिल्ली एक्सट्रीमली हॉट है एंड शिमला कंपैरेटिवली कूल है बिकॉज ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड। ओके, सो द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन हिमालयास इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग समर। तो हिमालयन माउंटेन में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो पीक है वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल स्नो कवर्ड रहती है। द रीजन इज दिस बिकॉज इट इज एट अ वेरी मच हायर ऑल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर है उसकी पीक, और इसी वजह से वहां स्नो कवर्ड ही रहता है इवन ड्यूरिंग समर। समर सीजन में भी वहां पर स्नो कवर्ड रहता है क्योंकि इतनी हाइट पर है वो कि वहां पर गर्मी नहीं होती है और ये स्नो भी मेल्ट नहीं हो पाता है। Thus, the temperature of place decreases with an increase in the altitude. जैसे जैसे altitude increase होता जाएगा, temperature decrease होता जाएगा। Clear? Next is distance from the sea. The climate of the place is also affected by its distance from the sea. sea के ऊपर, sea के कितने नजदीक है एक प्लेस, उसके ऊपर भी वहां का क्लाइमेट डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी आर मच हॉटर एंड ह्यूमिड। गर्म होता है, ठंडी ज्यादा नहीं होती है बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सी। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। वाटर हैज अ स्पेशलिटी। Water once heated, it takes much time to get cooled down. एक बार पानी जब गर्म हो जाता है तब उसको ठंडा होने में वक्त लगता है। Now you might say कि तो सी और क्लाइमेट को क्या इफेक्ट करता है? It is because डे टाइम में जब सन की लाइट होती है तो इस सी का वाटर गर्म हो जाता है सन की लाइट एंड हीट की वजह से, और ये हीट जो है वो कूल डाउन नहीं होता है फास्ट, उसकी
उसकी कूलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है, वाटर की कूलिंग प्रोसेस स्लो होती है, और इस वजह से इवन इन द इवनिंग और नाइट, इवनिंग या नाइट में भी ये पानी जो है वो गर्म रहता है, और उसके ऊपर से जो ब्रीज फ्लो होके आती है टुवर्ड्स द लैंड, इट इज हॉट। इवनिंग में जब इस वाटर के ऊपर से ब्रीज, मतलब कि आपकी जेंटली मूविंग एयर, जिसको हम ब्रीज कहते हैं, ये मूव होती है, तो वो सी के पास जो कोस्टल एरियाज, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, वहां पर गर्म हवा ही ब्लो होती है, और इस वजह से प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी आर हॉट। क्लियर? सो द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस also affect the distance from the sea. Places which are situated away from the sea are hot in summer and cold in winter. जो समर के सीजन में कोस्टल एरियाज जो है, कोस्टल प्लेन्स, वो तो थ्रू आउट द ईयर हॉट ही रहेंगे, क्योंकि विंटर में भी कोल्ड विंड नहीं होती है, हॉट विंड ही होती है। बट सी से अगर दूर है, फॉर एग्जाम्पल अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल, आर दे लोकेटेड नियर दिल्ली? दिल्ली के पास है ये? नहीं है। और इसी वजह से जितनी भी प्लेसेस अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इनके नजदीक है, वहां पर विंटर में भी गर्मी रहती है, बट दिल्ली विंटर में इट बिकम्स वेरी कोल्ड। जम्मू कश्मीर, जहां पर कोई सी नहीं है, कोई ओशन नहीं है, लार्ज वाटर बॉडीज है ही नहीं, तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस? इट फ्रीजेस। जम्मू कश्मीर एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि विंटर में कोल्ड विंड वहां ब्लो होती है, बट सी के पास जो एरियाज है वहां पर कोल्ड विंड ब्लो नहीं होती है, वहां पर कोल्ड विंड ब्लो नहीं होती है। सी की ब्रीज जो होती है वो गर्म होती है, और इसी वजह से विंटर में भी गर्म होती है। On the other hand, places situated near the sea have moderate climate during summer and winter. Moderate climate रहता है summer में भी, winter में भी. Moderate means which is neither too hot nor too cold. That is moderate. This is because the land and the sea breezes which occur in the coastal region. और ये land breeze और sea breeze जो मैंने कहा, land breeze means the breeze which blow from the land towards the sea, and sea breeze वो होती है जो sea के ऊपर से blow होके land की तरफ आती है। तो इस वजह से वहां का क्लाइमेट जो है, the places located near the sea have moderate climate. वहां पर ज्यादा ठंडी नहीं होती। During the day, the land heat up faster, and this causes the air above it to warm up. डे टाइम में लैंड जो है वो सन की हीट की वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और फिर लैंड के ऊपर जितनी भी एयर है या विंड है वो भी गर्म हो जाती है। इट वार्म्स अप। द वार्म एयर देन राइजेस एंड मेक वे फॉर द कूल एयर फ्रॉम द सी टू ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। तो ये जो गर्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ ब्लो होने लगती है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्लो होती है तो सी के ऊपर की थोड़ी बहुत जो कूल विंड है वो लैंड की तरफ आने लगती है। दैट इज अ फिनोमिनन। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपकी मम्मा चाय बनाती है तो उसमें से स्टीम जो गर्म होती है वो ऊपर होती है ना, उसी तरह लैंड जो गर्म होता है तो उसके ऊपर की एयर गर्म हो जाती है, और गर्म एयर की ये स्पेशलिटी है कि व्हेन इट इज वार्म इट मूव्स अप, वो ऊपर की तरफ ब्लो होती है। और कंपैरेटिवली जो सी के ऊपर की एयर है वो ठंडी होती है कंपैरेटिवली, तो वो ठंडी एयर जो है वो इसकी जगह ले लेती है, क्योंकि एयर इट ऑक्यूपाइज द स्पेस। जितनी भी एम्प्टी स्पेस है वहां पर एयर ऑक्यूपाई कर लेती है उन स्पेस को। दैट इज यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर साइंस, राइट? साइंस में आपने सीखा होगा कि अगर एम्प्टी ग्लास भी पड़ा है तो इट इज नॉट एम्प्टी, इट हैज एयर इन इट, करेक्ट? तो इस वजह से जो है वो
गर्मी और ठंडी की लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ओकर होती है. सो दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज. व्हेन द सी ब्रीज that is comparatively less hot, it moves towards the land, it is called sea breeze. What is it called? It is called sea breeze. But at night, रात में क्या होता है, वाटर जो है वो गर्म हो गया है पूरे दिन में, तो उसको ठंडे होने में टाइम लगता है. बट एट नाइट क्या होता है, लैंड ठंडा भी हो जाता है फटाफट से. तब लैंड के ऊपर जो है वो कोल्ड एयर हो जाती है, एंड सी के ऊपर की जो एयर है वो अभी भी गर्म होती है. तब क्या होगा, सी की जो एयर है वो ऊपर चली जाती है बिकॉज इट इज हॉट, और लैंड की जो कोल्ड विंड है वो सी की तरफ बढ़ने लगती है. दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. व्हाट इज इट कॉल्ड? लैंड ब्रीज. सो एट नाइट द सी रिमेन्स वार्म because it loses its heat slowly when compared to land. Comparatively land से sea को ठंडा होने में टाइम लगता है. लैंड फटाफट से ठंडा हो जाता है, बट सी ठंडा नहीं होता, इसीलिए सी के ऊपर की एयर जो है वो गर्म ही रहती है. The air above the sea warms up and makes way to the cool breeze from the land to blow towards the sea. तो ये वार्म एयर जो सी के ऊपर होती है वो नाइट में ऊपर चली जाती है, और लैंड वाली कूल ब्रीज जो है वो सी की तरफ बढ़ने लगती है. एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज लोकेटेड नियर द अरेबियन सी. इट एक्सपीरियंस moderate climate throughout the year. The climate in Mumbai is neither too hot nor too cold. मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट होता है. On the other hand, Delhi is situated away from the sea, but Delhi सी से बहुत दूर सिचुएटेड है, उसके आजू बाजू में कहीं भी सी नहीं है. So it experiences an extreme climate. यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. That is, in summer it is extremely hot and in winter extremely cold. समर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एंड विंटर में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है. This is hot, it has a hot summer and cold winters. This is how the distance of the place from the sea affects its climate. Now I hope you have understood how the distance from the sea affects the climate of a particular place. Next point is the direction of the wind. एक प्लेस है तो उस प्लेस पर किस डायरेक्शन से विंड ब्लो होकर आती है. नॉर्थ से ब्लो होकर आती है तो ठंडी रहेगी. ईस्ट या वेस्ट से ब्लो होकर आती है तो कंपैरेटिवली गर्म रहेगी. करेक्ट. तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ द विंड, किस डायरेक्शन से विंड ब्लो होकर आती है उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, इट अफेक्ट्स दैट प्लेसेस क्लाइमेट. उस जगह का क्लाइमेट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड्स ब्लो also affect the climate of a place. Winds blowing over from region which are hot tend to increase the temperature of a place. For example, किसी hot area की तरफ से कोई wind blow होकर आपके place में आती है तो वो उस hot area का hot temperature भी अपने साथ लेकर आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर समर सीजन में नॉर्थ साइड से अगर कोई विंड ब्लो होकर आती है तो क्या होगा, दिल्ली के ऊपर से विंड ब्लो होकर गुजरात में फ्लो हो रही है तो क्या होगा, दिल्ली में भी बहुत गर्मी है तो गुजरात भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा. राजस्थान की तरफ से अगर ब्लो होती है विंड तो भी गर्म होगा. राइट. विंटर सीजन में क्या होगा, नॉर्थ में से विंड ब्लो होती है तो नॉर्थ दिल्ली साइड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो उस टाइम वहां से इस तरफ भी बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है. यू माइट हैव एक्सपीरियंस, जब नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल होता है उसके 1 या 2 दिन बाद हमारे यहाँ गुजरात में एक्सट्रीमली ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि नॉर्थ में स्नोफॉल हुआ. दैट मीन्स कि शायद वहां से जो विंड ब्लो होकर आई है वो गुजरात में एंटर कर रही है और एंड दैट इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ गुजरात. करेक्ट. सो नाउ
Similarly, winds coming from region which are cold tend to decrease the temperature of the place. तो अगर कोल्ड प्लेसेस से विंड ब्लो होकर आती है तो वो आपके प्लेस का टेम्परेचर भी कूल डाउन कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट इन समर बिकॉज ऑफ द हॉट विंड्स विच ब्लो ओवर द रीजन. On other hand, Delhi experienced cold climate in winter because the cold winds which blow from the Himalayas. दिल्ली में विंटर के टाइम बहुत ठंडी इसीलिए होती है क्योंकि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालयास से विंड ब्लो होकर आती है वो पूरे दिल्ली को फ्रीज कर देती है, ठंडा कर देती है. Similarly, winds which blow from the sea towards land bring rainfall to coastal region. तो सी की तरफ से जो लैंड के ऊपर ब्रीज ब्लो होकर आती है ना, वो अपने साथ रेन्स भी ले आती है, तो इसीलिए रेनफॉल होने लगता है. नेक्स्ट इज रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी. द मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स व्हाट? आपके सराउंडिंग एरिया में जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, भेज कितना है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी. क्या कहते हैं? इट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. सो इन रेनी सीजन यू माइट हैव एक्सपीरियंस ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीजेस. आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, पापड़ जो आप रोस्ट करके रखते हो घर में, मॉनसून सीजन में क्या होता है, उस पापड़ को जैसे ही आप रोस्ट करोगे, अगर 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपने उसे एयर टाइट कंटेनर में नहीं स्टोर किया तो वो एकदम रोटी जैसा बन जाएगा, लूज. उसमें क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि आपने उसे गीला नहीं किया, बट आपके एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से वो वाटर वेपर आपको दिख नहीं रहा है, ह्यूमिडिटी दिखती नहीं है, बट इट इफेक्ट्स ऑन दैट रोस्टेड पापड़. ओके. Humidity also affects the climate of a place as it causes rainfall. In very cold places, humidity causes snowfall instead of rainfall. बहुत ठंडी जगह है तो ये रेनफॉल की बदले स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है. Because these rain drops due to extreme cold condition, it changes into snow. ये स्नो में बदल जाते हैं. Thus, the coastal area are more humid because the wind blowing over these regions originate from the sea. तो इसी वजह से कोस्टल एरिया जो है आपके दरिया के साइड जो भी प्लेसेस लोकेटेड है वहां नॉर्मली क्लाइमेट ह्यूमिड ही रहता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत पसीना निकलता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. आप अगर ड्राई एरियाज में लोकेटेड है तो क्या होगा, आपको स्किन बर्न होने फील होगी कि आपकी स्किन जल रही है, ऐसा फील होगा गर्मी में. बट अगर आप कोस्टल एरिया में जाते हो, से फॉर एग्जांपल मुंबई में जाते हो, तो हॉट सीजन में क्या होगा, गर्मी स्किन के ऊपर फील नहीं होगी बट स्वेटिंग बहुत होगी, पसीना बहुत निकलेगा. इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड नियर अरेबियन सी, तो अरेबियन सी का जो वाटर है वो पूरे दिन सन की हीट की वजह से इवोपरेट होता रहता है और ये जो इवोपरेशन की प्रोसेस है उसमें एयर के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ते रहता है. एंड दैट इज व्हाई द क्लाइमेट देयर हैज ह्यूमिड लेवल अ बिट हायर. ऑन द अदर हैंड, क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज एक्सट्रीम हॉट बिकॉज दे रिसीव लिटिल रेन और नो रेन. डेजर्ट एरिया में क्लाइमेट बहुत गर्मी होती है क्योंकि वहां पर या तो बहुत कम बारिश होती है या तो कभी कभी होती ही नहीं है. इफ देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो अगर नहीं है तो एयर के अंदर इवोपरेट होके कैसे आएगा वाटर वेपर. तो ड्राई एयर है इसीलिए गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है. So, this is because the wind which blow over the desert region are dry and have no moisture. So, all these things are the features or the factors which affect the
climate of a particular place. They have also shared an important information, that is Mawsynram located in Meghalaya is the wettest place on the earth. Mawsynram जो मेघालय, इंडिया में मेघालय नाम का एक स्टेट है, यहाँ का एक प्लेस है, इस स्टेट में एक प्लेस है जिसका नाम है मौसिनराम. इट इज सेड टू बी द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. इसको सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला प्लेस, पूरे अर्थ के ऊपर का सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला प्लेस कहा जाता है. इट रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 11,871 मिलीमीटर्स. तो यहाँ एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 11,871 mm का रेनफॉल होता है. एनुअल रेनफॉल मतलब पर ईयर इतनी बारिश होती है कि इतना वाटर लेवल हाई हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज द वेटेस्ट प्लेस. यहाँ एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है. ओके, so this was all regarding the factors influencing the climate of a particular place. Next session we will take up the climatic zones or the heat zones on the earth. आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं. Along with this video I am sending a PDF and you have to read the instructions properly and do your work and read the chapter till where I have explained to you in this video. तो चलो, if you have liked this video, you have to click on the like icon. Hope to see you good in the next session. Bye.